نہ باطل کا لشکر رہے گا، نہ باطل کا لشکر رہے گا، مگر حشر تک دین سربر رہے گا۔ وہ خود مٹ گئے جو مٹانے کو آئے، محمد کا چرچا تو گھر کر رہے گا، محمد کا چرچا تو گھر کر رہے گا۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی یاد داستان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نیو ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ اور چنگیز خان کی فوج کیا تھی اور مسلمانوں کو کیسے قتل عام کرتی تھی، آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ پوری ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم مسلمان ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جن کی شکلیں بالکل ریڈ لال ہوں گی، ان کے ناک بالکل فلیٹ ہوں گے، ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی اور چہرے بالکل شیلڈز کی طرح فلیٹ ہوں گے، اور جن کے جوتے بالوں سے بنے ہوں گے۔ ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعد اپنی وفات تک پورے عرب کو فتح کر لیا تھا، اور مسلمانوں کی ایمپائر پورے عرب میں پھیل چکی تھی، جس کے بعد خلافت راشدہ کے 30 سالوں میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار عرب سے نکل کر انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی ایمپائر بنائی، اور پہلی بار مسلمان دنیا کے سپر پاور بنے۔ لیکن صرف 30 سال حکومت کے بعد خلافت راشدہ ختم کر دی گئی، اور خلافت ایک خاندان بنو امیہ کے کنٹرول میں آئی، جنہوں نے پھر مسلمانوں کی اس ایمپائر پر 90 ایئرز تک حکومت کی، اور اسے راشدون خلافت کی اس سائز سے بڑھا کر اتنے علاقے تک پہنچا دیا۔ امیہ خلافت نے اتنے بڑے علاقے کو تو فتح کر لیا تھا، لیکن بنو امیہ کی خلافت میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہ خلافت صرف اور صرف عربوں کی تھی، جس میں نان عرب لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس حد تک عرب کہ اتنی بڑی ایمپائر کے باوجود عرب ہمیشہ اس پوری ایمپائر میں باقی عوام سے بہت کم ملتے تھے، اور کسی نان عرب کو عرب سے شادی کرنا امپاسبل تھا، اور بنو امیہ کی گورنمنٹ میں سارے پوسٹ صرف عربوں کے پاس تھے۔ یہ اسی طرح تھا جس طرح آج UAE اور سعودی میں پاکستانیوں اور انڈینز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس سب سے تنگ آ کر امیہ خلافت کے خلاف ان کے ملک کے اندر سے ہی بغاوت ہوئی، اور ایک اور خاندان عباسیوں نے خلافت سنبھالی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی۔ اب عباسیوں کے ٹائم پر ہی مسلمانوں کی طاقت اپنی پیک تک پہنچی، جسے ویسٹ میں اسلامک گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے، جب بغداد عباسی خلافت کا کیپٹل دنیا کی سب سے طاقتور سٹی تھی۔ عباسی خلافت نے دنیا کی سپر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی یونیک کام کیا کہ انہوں نے اپنے کیپٹل بغداد کے اندر دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی، جسے ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا تھا، اور اس لائبریری کو دنیا کی بہترین کتابوں، سٹوریز اور پوئٹری سے بھر دیا، جس کی وجہ سے دنیا کے سارے انٹلیکچوئل لوگ، سائنٹسٹ، پوئٹس، آرٹسٹس، سب اپنے علاقے چھوڑ کر یہاں اس سٹی میں جمع ہونے لگے۔ عباسی خلیفہ نے اس ہاؤس آف وزڈم میں ایک پورشن ٹرانسلیشن کے لیے بنایا، تاکہ یہاں پر لوگ بیٹھ کر دنیا کے پرانے عظیم لوگوں کی رائٹنگز کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکیں۔ اور جب یہ ٹرانسلیشن شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ عربی زبان دنیا کی سب سے طاقتور زبان بننے لگی، جس طرح آج انگلش زبان ہے۔ عباسی خلافت نے دنیا میں پہلی بار سائنٹسٹ کو اپنے ریسرچ کرنے کے لیے فنڈنگ کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے مسلمان سائنٹسٹ سامنے آئے، جیسے کہ بغداد کے اس ہاؤس آف وزڈم کا ہیڈ، جس کا نام تھا الخوارزمی، A man named Al-Khwarizmi جنہوں نے پہلی بار دنیا میں الجبرا انٹروڈیوس کیا، was one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. جو آج بھی دنیا کے سائنس میں بہت بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ عباسی خلافت میں سائنس کے ساتھ ساتھ آرٹس بھی بہت آگے بڑھا، اور اسی دور میں الف لیل و لیل جیسی کتاب لکھی، 1001 Nights، جس میں ایسی سٹوریز لکھی گئی جن پر آج تک ہالی ووڈ میں موویز بنائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل الادین، علی بابا، They all know about Alibaba. اور سمباد وغیرہ۔ ان شارٹ مسلمان دنیا کے سپر پاور تھے، اور انہیں چیلنج کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن جب بھی ہسٹری میں کوئی ایمپائر اس لیول تک پہنچتی ہے تو اس سے آگے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ڈکلائن۔ ہوا یوں کہ عباسیوں سے پہلے امیہ خلافت ایز وی نو کہ صرف عربوں کی خلافت تھی، لیکن عباسی خلافت امیہ سے بالکل اپوزٹ تھی۔ مطلب اس خلافت کے دور میں ایمپائر کے ہر کونے سے لوگ گورنمنٹ میں شامل تھے،
पर्शियंस, टर्क्स, ग्रीक सब, और एक अब्बासी खलीफा ने तो तुर्कों की एक बहुत पावरफुल फौज भी बनाई, सल्जूक फौज। और ये फौज टाइम गुजरने के साथ साथ इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसने अब्बासी खिलाफत को मजबूत करने के बजाय खिलाफत का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद खलीफा सिर्फ एक नाम का खलीफा था और मुल्क की सारी ताकत सल्जूक फौज के पास थी। ये ऐसा है जैसे आज किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नाम का प्राइम मिनिस्टर हो और मुल्क की सारी ताकत किसी और के पास हो। सॉरी। सल्जूक फौज के कंट्रोल के बाद इसी फौज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत कमजोर होती गई और उनकी इस इतनी बड़ी एम्पायर में हर तरफ बगावतें स्टार्ट होने लगी, जिससे आखिर ये इतनी बड़ी एम्पायर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गई, जिसकी वजह से मुसलमानों के हाथ से पहली बार फलस्तीन छीन लिया गया। इस सब से बहुत साल पहले पहली खिलाफत में जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन सारे इलाकों को फतह कर रहे थे तो उन्होंने क्रिश्चियंस की सबसे होली सिटी जेरूसलम को भी फतह कर लिया था। उसके बाद अगले 450 साल तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो फलस्तीन मुसलमानों से ले सके। लेकिन जब अब्बासी खिलाफत कमजोर हो गई और मुसलमान बहुत छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गए तो इस टाइम का यूरोप के क्रिश्चियंस ने फुल फायदा उठाया और यरूशलेम फलस्तीन को मुसलमानों के हाथ से छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी जंग स्टार्ट की, द क्रूसेड्स, the mightiest battle between Christianity and Islam. और आखिर 1099 में उन्होंने फलस्तीन और जेरूसलम फतह करने के बाद हजारों मुसलमानों, बच्चे, औरतें, बूढ़ों को शहीद कर दिया और उनके घरों को आग लगा दी। एक किताब में तो ये तक लिखा है कि क्रूसेडर्स ने मुसलमान माओं से उनके बच्चे छीनकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नीचे फेंक दिए। मुसलमानों ने इन क्रूसेडर्स से भागकर घरों और मस्जिदों में छुपने की कोशिश की, लेकिन क्रूसेडर्स ने बजाय इसके कि उनको निकाला जाए, क्रूसेडर्स ने उन घरों को बाहर से आग लगा दी, जिससे हजारों मुसलमान जलकर राख हो गए। अगर आप सोचेंगे कि इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है, तो आज भी फलस्तीन में यही सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह हो रहा है। क्रिश्चियंस के जुल्म से कुछ ही मुसलमान वहां से बच कर निकले और ये मुसलमान मस्जिद अक्सा से उस पुराने कुरान मजीद को भी अपने साथ लेकर गए जो हजरत उस्मान के दौर में लिखा गया था। इस सब जुल्म के बावजूद दुनिया में मुसलमानों का ऐसा कोई लीडर भी नहीं था जो फलस्तीन को दोबारा फतह कर सके। लेकिन फलस्तीन खोने के सिर्फ 40 साल बाद इराक में एक आम से सोल्जर नजमुद्दीन अयूब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से याद किया जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी 25 साल की एज में अपने चाचा के साथ इराक छोड़कर इजिप्ट की तरफ गए और वहां आहिस्ता आहिस्ता बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद इजिप्ट के बादशाह सुल्तान बन गए। ये बहुत लंबी कहानी है, इसे फिर करेंगे। अब जब यहाँ इजिप्ट में सलाहुद्दीन अयूबी इजिप्ट के बादशाह बनने की तरफ जा रहे थे तो इसी दौरान यहाँ से बहुत दूर मंगोलिया में एक छोटे से गांव के एक छोटे से कबीले के सरदार के घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था थेमोजिन चंगेज खान। यस, सलाहुद्दीन और चंगेज खान एक ही दौर में जिंदा थे। एक ने मुसलमानों को वापस ग्लोरी की तरफ लेके जाना था और दूसरे ने मुसलमानों को ऐसा तबाह करना था जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। फलस्तीन और स्पेशली जेरूसलम को खोने के बाद मुसलमानों का कोई स्ट्रॉन्ग लीडर तो नहीं था, लेकिन इस दौरान सबसे जबरदस्त रोल मुस्लिम स्कॉलर्स उलमा ने प्ले किया था, क्योंकि इससे पहले जो मुसलमान हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे और बहुत सारे फिरकों में डिवाइडेड थे, उन्हें कुछ बहुत अजीम स्कॉलर्स ने एक ही गोल पर यूनाइट करना शुरू किया कि किसी भी हाल में फलस्तीन को दोबारा फतह करना है, जिससे अगले कई सालों में मुसलमान किंगडम्स की यंग पॉपुलेशन के दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरह बैठ गई। लेकिन फिर भी मुसलमानों का ऐसा कोई एक लीडर नहीं था जो मुसलमानों को यूनाइट करके क्रिश्चियंस पर हमला कर सके। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने इजिप्ट का सुल्तान बनने के बाद पहले तो क्रिश्चियंस के एक ग्रुप से डील कर ली कि अगले 10 साल तक बिल्कुल अमन होगा और हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट सुलह हुदैबिया की तरह। इन 10 सालों को यूज करके सलाहुद्दीन अयूबी ने पहले मुसलमानों को यूनाइट करना शुरू किया और फिर आखिर इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब सलाहुद्दीन अयूबी दुनिया के सबसे ताकतवर मुसलमान बादशाह बन चुके थे और दुनिया के सारे मुसलमान फलस्तीन को फतह करने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखने लगे। उस जमाने के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी सलाहुद्दीन अयूबी को सपोर्ट किया, जिनमें से सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर थे, जिनकी सलाहुद्दीन अयूबी भी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फौज लेकर क्रूसेडर्स पर हमला कर दिया और साल 1192 में जेरूसलम को मुकम्मल तौर पर फतह करके सिक्योर कर लिया। 1192 मुसलमानों की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि इस साल एक तरफ सलाहुद्दीन अयूबी ने इतनी बड़ी फतह हासिल की और दूसरी तरफ शहाबुद्दीन गौरी ने इंडिया पर हमला करके इसे फतह कर लिया और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद भी रखी। अब ऑलमोस्ट 100 साल बाद
मुसलमान आखिरकार दोबारा थोड़ा स्टेबल होने लगे और मुसलमानों की खोई हुई इज्जत भी उन्हें वापस मिलने लगी। लेकिन अब जब मुसलमानों को थोड़ी कामयाबी मिल चुकी थी तो इस सबसे 600 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। तो इस सबसे बहुत दूर चंगेज खान ने मंगोलिया को यूनाइट कर लिया था और बहुत तेजी से हर तरफ अपनी ताकत बढ़ा रहा था। चंगेज खान का असली नाम तैमोजिन था और उसका बाप मंगोलिया के एक छोटे से कबीले का सरदार था। लेकिन तैमोजिन के बचपन में एक दूसरे कबीले ने उसके बाप को सीक्रेटली जहर देकर मार दिया था, जिसके बाद तैमोजिन और उसका पूरा खानदान बहुत सख्त जिंदगी गुजारता रहा। और कहा जाता है कि एक वक्त में तैमोजिन चाइना में किसी और का गुलाम बनकर भी रहा। लेकिन फिर तैमोजिन ने आखिर वापस मंगोलिया आकर अपने कबीले को यूनाइट किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये मंगोल एम्पायर बढ़ने लगी और इतनी बड़ी हो गई कि मंगोलियंस ने तैमोजिन को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया, चंगेज खान, जिसका मतलब है सबसे बड़ा बादशाह। खान, ये नाम खान इससे पहले टर्किश जबान में भी यूज किया जाता था, लेकिन चंगेज खान की वजह से ये नाम पूरी दुनिया में हमेशा के लिए फेमस हो गया। मतलब कुछ सर्वेस के मुताबिक आज दुनिया में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके नाम में खान आता है, जैसे कि शाहरुख खान, आमिर खान और ऑफ कोर्स इमरान खान। मंगोलिया को आज भी अगर देखा जाए तो एक बहुत ही गरीब और आम सा मुल्क है और उस जमाने में तो इससे भी बहुत ज्यादा कमजोर था। इसीलिए चंगेज खान के इस एम्पायर के बनने के बाद भी मंगोलिया के नेबर चाइना ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में चंगेज खान ने चाइना की कैपिटल बीजिंग को फतह कर लिया और पहली बार लोगों ने देखा कि चंगेज खान कितना जालिम है। और उसके जुल्म की कहानियां तो हम सब ने सुनी है कि वो लोगों के सर काटकर उसके पिरामिड्स बनाया करता था। लेकिन ये जुल्म चंगेज खान का कोई शौक नहीं था, इस जुल्म से उसे बहुत बड़ा फायदा था। मतलब उसने अपनी पूरी फौज को 10 आदमियों के ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर 10 से 100 और फिर 100 से 1000 और 1000 से 10,000 के ग्रुप्स। नाउ चंगेज खान ने अपनी आर्मी के लिए एक रूल बनाया था कि हर 10 लोगों के ग्रुप में अगर एक बंदा भी जंग छोड़कर भाग जाएगा तो उसके ग्रुप के बाकी 9 लोगों के सर काट दिए जाएंगे, जिससे चंगेज खान की आर्मी के सोल्जर्स एक दूसरे को जंग से भागने ही नहीं देते थे और जो भी भागने की कोशिश करता था उसे उसकी आर्मी खुद ही मार देती थी। इसके अलावा चंगेज खान ने जस्टिस का एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर कोई भी इस एम्पायर में किसी दूसरे का घोड़ा चोरी करे और पकड़ा जाए, उसे उस एक घोड़े के बदले 10 घोड़े वापस करने होंगे और अगर वो वापस ना कर सका तो सिर्फ उसे नहीं, उसके पूरे खानदान, बच्चे, बीवी, माँ बाप सबको मार दिया जाएगा। इस तरह चंगेज खान की ये जालिम एम्पायर बहुत तेजी से फैलने लगी और आखिर मुसलमानों की एक एम्पायर ख्वारिज्म से टकरा गई। पहले तो चंगेज खान का कोई इरादा नहीं था कि वो मुसलमानों से जंग करे, इसीलिए उसने ख्वारिज्म के बादशाह की तरफ दोस्ती का पैगाम लेकर एक डेलीगेशन भेजा। लेकिन ख्वारिज्म के बादशाह ने उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें रिहा करने के लिए चंगेज खान ने अपने एम्बेसडर को बादशाह की तरफ भेजा। लेकिन बादशाह ने उस एम्बेसडर का सर काट दिया। अब ये बहुत बड़ी बात, एम्बेसडर या मैसेजर को कत्ल करना इस्लाम में और दुनिया के हर कानून में बहुत बड़ा जुर्म है। जब मंगोलिया में चंगेज खान को इसका पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और अब उसकी इज्जत का सवाल भी था। तो उसने अपनी सबसे बड़ी फौज 1 लाख की फौज लेकर ख्वारिज्म की तरफ रवाना हुआ और यहाँ मुसलमानों और मंगोल्स के दरमियान अगले 100 साल की जंग शुरू हुई। चंगेज खान ने बहुत तेजी से ख्वारिज्म की इस पूरी एम्पायर को खत्म कर दिया और हर सिटी को फतह करने के बाद वहां की सारी पॉपुलेशन के सर काट दिए और फिर उनके पिरामिड्स बनाए, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि चंगेज खान से फड्डा लेना कोई आसान काम नहीं है। चंगेज खान के हमले से पहले ख्वारिज्म एम्पायर, जिसमें आज अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे इलाके हैं, इनकी आबादी 2 मिलियन 20 लाख के करीब थी और चंगेज खान के हमले के बाद अब यहाँ की आबादी सिर्फ 2 लाख रह गई थी। मतलब चंगेज खान ने 18 लाख मुसलमानों को शहीद किया था। इन इलाकों को फतह करने के बाद एक दिन चंगेज खान ने सारे मुसलमानों को एक मस्जिद में जमा किया और फिर खुद मिंबर पर चढ़ा और सारे मुसलमानों से कहा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अजाब बनाकर भेजा गया। इसके बाद मंगोलियन एम्पायर और भी बढ़ती गई और ऊपर रशिया को भी फतह कर लिया। लेकिन उसी दौरान मंगोलिया में चंगेज खान फौत हो और अपने बाद अपने बेटे उगुदाई को सबका बादशाह बनाया और अपनी पूरी एम्पायर को अपने बेटों में डिवाइड कर दी। लेकिन चंगेज खान के जाने के बाद भी मंगोल एम्पायर हर तरफ फैलती गई और आखिर बहुत साल बाद चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने एक और बहुत बड़ी फौज तैयार की और उसे लेकर बगदाद अब्बासी खिलाफत के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगा, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी
और सबसे पावरफुल सिटी थी। अब चाहिए तो ये था कि उस वक्त के मुसलमान यूनाइट होकर मंगोल से लड़ते, लेकिन उस वक्त के मुसलमान इतने फिरकों में डिवाइड हो चुके थे कि मंगोल एम्पायर से लड़ने से ज्यादा वो एक दूसरे से डिबेट्स और मुनाजरों में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। हलाकू खान ने हर तरफ से बगदाद को घेर लिया और फिर आखिर 1258 बगदाद को मुसलमानों से छीन लिया और मुसलमानों के खलीफा को कत्ल कर दिया, जिसके बाद अब्बासी खिलाफत 500 साल तक हुकूमत करने के बाद हमेशा के लिए खत्म। बगदाद फतह करने के बाद हलाकू खान की फौज ने इतना खून बहाया कि कहा जाता है कि बगदाद में दरियाए फुरात का कलर मुसलमानों की खून की वजह से कई दिन तक बिल्कुल रेड, और रेड कलर के बाद यूफ्रेटिस रिवर का कलर ब्लैक हो गया, क्योंकि हलाकू खान ने बगदाद के हाउस ऑफ विजडम, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उसके सारे किताब जलाकर राख कर दिए और उन्हें दरिया में फेंक दिए, जिसकी वजह से दरियाए फुरात का कलर कई महीने तक बिल्कुल ब्लैक था। हिस्ट्री में मुसलमानों पर इतना सख्त टाइम कभी भी नहीं आया कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे होली साइट्स को भी खतरा हो, क्योंकि अब्बासी खिलाफत को खत्म करने के बाद अब मंगोलों के सामने सिर्फ एक और सल्तनत थी, ममलूक सल्तनत, और अगर ये इसे भी हरा देते तो मक्का और मदीना का कंट्रोल भी मंगोल्स के पास चला जाता, तो वो 100% मक्का में काबा को गिरा देते। बट ऐसा नहीं हुआ। जब मंगोल्स बगदाद फतह करके आगे बढ़े तो ये देखकर इजिप्ट के ममलूक सुल्तान ने अपने जनरल बेबर्स के साथ मंगोलों से लड़ने का फैसला किया। सुल्तान को सबने समझाने की कोशिश की कि मंगोलों से लड़ना इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि उस जमाने के लोगों और कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी ये कह दिया था कि ये मंगोल ही असल में याजूज माजूज है और बस इसके कुछ ही अरसे बाद कयामत आने वाली, तो इनसे जीतना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी सुल्तान और उसका जनरल बेबर्स मंगोलों के खिलाफ एक फौज जमा करने लगे। अब इसी दौरान मंगोलिया में हलाकू खान का भाई, जो उस वक्त पूरे मंगोल एम्पायर का बादशाह था, मार दिया गया। तो हलाकू खान मजबूरन अपनी बड़ी फौज लेकर वहां से वापस चला गया और एक छोटी फौज को यहाँ पर छोड़ा, और आखिर फलस्तीन में एन जालूत के मकाम पर मंगोल्स और मुसलमानों की फौज आमने सामने हुई। ये एन जालूत इलाका फलस्तीन में है और इसे एन जालूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदियों के मुताबिक ये वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर इससे हजारों साल पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़े वॉरियर जालूत को हराया था। और अगेन अब हजारों साल बाद यहाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि कमजोर मुसलमानों ने पहली बार द ग्रेट मंगोल एम्पायर को बहुत बुरी तरह हरा दिया और मंगोल एम्पायर की एक्सपेंशन को हमेशा के लिए रोक दिया। मतलब ये जंग हारने के बाद मंगोल एम्पायर कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ी। ये थी मंगोल्स और मुसलमानों की जंग, जिसका इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, जो आखिर एन जालूत की जंग के साथ खत्म हो गई। लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर मंगोल्स का कंट्रोल था और उन्हें दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यही मंगोल यहाँ के रिलीजन इस्लाम को स्टडी करने लगे और आखिर इतना इम्प्रेस हुए कि सारा मंगोल खानदान जो इन इलाकों में आबाद था मुसलमान हो गया और ये सारे इलाके दोबारा इस्लाम के कंट्रोल में आए। अगर आप चंगेज खान की औलाद के सारे नाम देखें तो पहले इन सारों के नाम बिल्कुल मंगोल नाम, जैसे कि ओगोदाय, जोची, हलागू, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके नाम मंगोल से मुसलमान नाम होने लगे, जैसे कि मोहम्मद, तैमूर, यूनुस और बाबर। क्योंकि इंडिया पर बहुत साल हुकूमत करने वाली मुगल एम्पायर इसी चंगेज खान की औलाद में से थी। हजरत उमर और चंगेज खान में एक बात कॉमन है कि इन्होंने अपने जमाने की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर एम्पायर्स बनाई थी। लेकिन इन दोनों एम्पायर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आज चंगेज खान को सिर्फ एक जालिम के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन हजरत उमर को पूरी दुनिया एक ग्रेट लीडर मानती है। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमके रसूल पाक का दीवाना चाहिए।